एलएलपी में सबसे पहले आता है power of tribunal to enforce compromise or arrangement in section 61. And the tribunals we can order under section 16 sanctioning and compromise and arrangement respect of LLP, like compromise or arrangement हो रहा है in case of creditors and debtors of an LLP if an LLP is unable to pay that. Firstly, LLP tribunal can call meetings of creditors and partners to discuss the compromise, and three-fourths of the majority required to be compromised to be binding. Tribunal must be satisfied with the LLP's financial disclosures, and order must be filed with registrar within 30 days. Failure to comply may result in penalties for LLP and designated partners. Tribunal can temporarily stop any legal proceeding against the LLP during the compromise and arrangement. In case of wind-up, designated partners are liable to pay like penalty of 10,000 in case of continuing default 100 per day and maximum 1 lakh, and as per also 50,000 for designated partners and LLP there will be the penalty. Power of tribunal to enforce compromise and agreement is defined in Section 61 of the Railway Act. Whether a tribunal can make order under Section 16 sanctioning compromise and arrangement in respect of LLP shall have power to supervise the carrying out of the compromise and arrangement may at a time of such orders and any time thereafter without modification in any कुछ मोशन और पर कुछ नहीं होता, बस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब कि क्रेडिटर्स जो थे वो आप पे नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करा देती है एलएलपी, और उसके बीच अगर आपके ऊपर कोई लॉ केस वगैरह चल रहा हो तो वो भी हट जाता है। ये ज़्यादा कुछ वो नहीं है, तो चीज़ नहीं है, बट इट्स लाइक इजी। पिछले अटेंड में आया था जैन में। नाउ फर्दर वी शुड मूव ऑन to like another important section, like registration and effect of conversion. L LLP can be converted into a listed company. A listed company can be converted into an LLP. A partnership can be converted into an LLP, and a firm can be converted into an LLP. But a listed company cannot be converted into LLP. Uh, Schedule 2, 3, and 4 defines for this form to LLP. Schedule 3, Schedule 2, private company to LLP. Schedule 3 and Schedule 4 for unlisted company, which is a public company 2 LLP. Okay. Firms convert into LLP. Registrar checks the compliance with the issue of registration certificate. Registrar ही registration की फॉर्म्स ही आपको सर्टिफिकेट इशू करके देती है। LP must inform registrar prior within 3 days. Partnership partners and shareholders are bound with new LLP rules. The conversion takes effect on registration date with specified consequences. When an LLP is registered, a new LLP is created with specific time, assets, liability, plus properties of old firm company transfers to the LLP. The old firm company is dissolved and remove the records. Essence of registration creates a new LLP. कुछ नहीं है, पुरानी जो फॉर्म है वो जब नई पार्टनरशिप फॉर्म बना, जो नई पार्टनरशिप फॉर्म जब नई एलएलपी बना रही है तो आरओसी को बता दो कि 3 दिन में वैसे सर्टिफिकेट तो वही इशू करने वाले, तो उनको तो पता ही रहेगा ना, बट आपको इन्फॉर्म करना है कि हमको मतलब कन्वर्ट कराना है, ठीक है। और कन्वर्जन जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फॉर्म एलएलपी का उस दिन से इफेक्ट हो जाएगा कन्वर्ज वो। और जैसे ही नया बनेगा तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा और उसके नए वो होंगे, नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, और ओल्ड फॉर्म पुराने फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और नए फॉर्म को बना दिया जाएगा ऑन रिकॉर्ड्स। और जो जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है वो भी नए एलएलपी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, और इसी से नया वो बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी प्रोसेस बता दी, फाइल एंड एप्लीकेशन आरओसी इन 15 डेज, ठीक है। और आरओसी अगर सेटिस्फाई होगा, इसमें प्रोविजन सारे कंपाइल हो गए, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट तो सर्टिफिकेट इशू कर जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन का। एलएलपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन प्रीवियसली रजिस्टर्ड आफ्टर अबाउट कन्वर्जिंग विद इन 15 डेज। अब जब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो इशू कर रहा है तो उनको 15 डेज में क्या बताना, और उनको तो पता ही होगा ना। हाँ, बट अगर ऐसा है कि फॉर्म है जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में लाइक जो पार्टनरशिप फॉर्म्स रहती है वो उसमें रजिस्टर रहती है। इफ अगर वो कोई कंपनी है और एलएलपी के लिए जितनी भी वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रहता है, तो आई डोंट थिंक यू हैव टू टेल टू लाइक आरओसी, उसको तो पता है ना। तो स्टिल इट्स अ प्रोविजन say nobody complies in the like in real world, nobody complies with
whatever we are studying here, it's just on records. ऐसा इसका वास्तविकता से कुछ संबंध नहीं है, एथिक्स का भी कुछ संबंध नहीं है। और लोग आजकल पेपर पे अकाउंट्स नहीं बनाते, इट्स ऑटोमेटेड। आई डोंट नो व्हाई आईसीआई चाहता है कि हम ऐसे पेन पेपर पे उनको लेजर बना के दे टेढ़ी लाइनों में। क्या बता क्या कितनी सी रिफरेंस चलेगा, 5 मिनट की हो गई है भाई। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, अभी तक उल्टा चल रहा है। आ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एलएलबी की डेफिनेशन पढ़नी है क्या? नहीं 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 यार, कौन पढ़ता है एलएलबी की डेफिनेशन, कौन पढ़ता है? एक बच्चा क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लाइव चैट नहीं रिकॉर्डेड वीडियो क्या लिख रहा है बच्चा? सबसे पहले आ जाओ कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहती है। एक एलएलपी में देखो, एक इंडिविजुअली बन सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है, और जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसका एक नॉमिनी होना चाहिए। उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर दो होने चाहिए मिनिमम। उसमें से एक रहना चाहिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर में। लेट मी चेक दी कंडीशन। लिखते क्यों नहीं यार फट से, उसके टाइम लगा दिए यहाँ पे। 120 दिन है यहाँ की। वो ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल वो लाइक 120 दिन इंडिया में रहा होगा। उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए, अगर सेकंड वाला डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट है तो भी चलेगा। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट से मिलकर भी बनाएंगे तो उनका नॉमिनी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। इग्नोर दिस लाइट, वेरी लाइट चल रहा है। Can you see मेरा मैं मेरे को समझ तो नहीं आ रहा ना कि कट है वीडियो में, यहाँ पे कट है एक। मैं पॉज करके गया था, समझ तो नहीं आया है। लोगों को तो ऐसा बोल रहे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ बैठ के सुन रहे हुए वीडियो लेक्चर। टाइम पास के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बहुत। पेपर है मेरा आज लॉ का। मेरे को तो बस इसे रिवाइज करना था, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो चालू कर लेते हैं, इट्स लाइक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो करूँ तो ट्राई दैट। मेरा पेपर आता तुम्हारा, इग्नोर दीज। बाकी ये तो अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छी लग रही है, तो ये भी अच्छी ही है। अब इग्नोर दिस ऑल्सो, इट्स मैनेज। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गया था अपना। तो अब पार्टनर कौन कौन बन सकता है? सबसे पहले तो कोई भी बन सकता है, या कौन नहीं बन सकता, ठीक है। एक अनसर्न और नहीं बन सकता पर्सन अप्लाइड फॉर व्हाट, इंसॉल्वेंसी एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, या अप्लाई करके रखा है इसने अभी तक और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो, ठीक है। और एग्जिस्टेंट एज एन इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन पेंडिंग, ठीक है, ये तीन लोग नहीं बन सकते, बाकी किसी को भी बना लो, ठीक है। और यही है, पक्का बंद कर दिया मैंने, अब में लग रही है मेरे को। और अगर चेंज वेंज कर रहे हो तो भाई अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर डिजाइन करेगा। ठीक है, देखो अगर तुम्हारे पास 10 पार्टनर है ना, और तुमने जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बना तो उसमें एक डेजिग्नेटेड पार्टनर चलेगा और 30 दिन तक नहीं था वो, है ना। तो फिर जो एक कोई भी डेजिग्नेटेड, तो कोई भी पार्टनर होगा उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेते डिमीड हो जाएगा ये। हट मत पत्थर तो अगर तुम्हारे पास दो पार्टनर थे, है ना, उसमें से एक पार्टनर चला गया और विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ तुमने नया पार्टनर अपॉइंट ही नहीं कर पाए। दो ही पार्टनर है, पूरी फॉर्म में दो ही पार्टनर है, ठीक है, और तुम नया पार्टनर अपॉइंट ही नहीं कर पाए, सो देन यू विल बी गोइंग फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स एंड इफ ट्राइब्यूनल फाउंड इज जस्टिफिएबल एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, इट कैन wind up your partnership LLP also. So that's the procedure. Okay, there are something more. There are the punishments. Okay, so eligible for punishments. If a designated partner are less than two or more for designated rather than resident in India, ठीक है, LLP and every partner shall be liable for 10,000 penalty and in case of containing, देखो 10,000 की पहले एक रहेगी, और फिर पर डे की रहेगी 100, और मैक्सिमम जा सकती है एलएलपी की 1 लाख तक, और जो पार्टनर है बाकी पार्टनर की उसकी 50,000 तक, ठीक है। इन फेलियर ऑफ इन फेलियर टू फाइल द कंसेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है, 30 days।
आगे बढ़ा दो थोड़ी। Failure to file the consent of appointment of a designated partner within 30 days of appointment to every designated person shall be liable for certain। ठीक है कि अगर आपने कंसेंट उसकी कंसेंट लेना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर को। कंसेंट का फॉर्म अगर आपने वो नहीं बनाया, मतलब कि इस फेलियर टू फाइल द कंसेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफिस अपॉइंटमेंट। देखो जैसे ही अपॉइंट करेंगे तो उसकी कंसेंट का वो लेके आया, आरओसी को बताना नहीं कर पाए ना, तो भी पेनल्टी है 5,000 रुपये की। और 100 पर डे एलएलपी की जाएगी मैक्सिमम 50,000, और पार्टनर की जाएगी मैक्सिमम 25,000। एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट करती थी, कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कहती है, contravenes section 5 section 7 section 9, every partner shall be liable for the penalty of 10,000, मैक्सिमम एलएलपी की 1 लाख, पर डे की 100, एंड पार्टनर की 50,000। भाई कुछ भी पेनल्टी, लाइक इट्स लाइक वेरी प्रेडिक्टेबल। देखो अगर पेनल्टी है तो वो 10,000 रुपये की आएगी, 100 रुपये दिन का रहेगा। एलएलपी में यही हो रहा है, पार्टनरशिप की मैक्सिमम 1 लाख जाएगी इन सम केसेस। अगर ऐसा ऐसा किसी की लाइक इट्स जस्ट सम ड्यू टू सम नेग्लिजेंस, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे एलएलपी की 50,000 आएगी मैक्सिमम, और डेजिग्नेटेड पार्टनर की या पार्टनर की 25,000 आएगी। भाई इट्स लाइक वेरी प्रिडिक्टेबल। भाई भाई फीचर्स नहीं आते यार, फीचर्स नहीं आते। पढ़ना है तो पढ़ लो, मेरा पेपर है, मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा पेपर मैं नहीं पढ़ूंगा, मतलब लाइक शायद इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, 70 मार्क्स का ही पेपर है। 100 मार्क्स का, 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, 70 मार्क्स का है भाई। 15 चैप्टर है, कितना पूछ लेंगे वो लोग, कितना ही पूछ लेंगे। ठीक है, इतना कुछ डिटेल में नहीं जाने वाले। बाकी चैप्टर से होगी तो सबको अहमियत दोगी। तुम्हारा क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में, सबको अहमियत देना छोड़ो। भाई बता दो, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफिस आर टू बी नोटिफाइड आरओसी फॉर रिसीविंग ऑल नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स। रजिस्टर्ड ऑफिस एक रजिस्ट्रेशन का आपको डॉक्यूमेंट, और जैसे ही आप एलएलबी बनाओ आपका एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस होना चाहिए, जिसमें आप बैठो, पियो, नहीं, जहाँ पे आप काम करो, जहाँ पे आपको लीगल नोटिस आए जब भी आप कोई फ्रॉड करो। ठीक है, ये बात है। सब होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। पार्टी चल रही नहीं करना वहाँ पार्टियाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस में सिर्फ। और इसका कोई चेंज है तो एल आरओसी को बताओ, ठीक है, वापस आ गई। और अगर पेनल्टी हुई तो एलएलबी को 500 रुपये प्रतिदिन, और मैक्सिमम 50,000 रुपये। एलएलबी और पार्टनरशिप, पार्टनर्स दोनों का मिला के 500 रुपये पर डे के हिसाब से। आरओसी टू बी नोटिफाइड, आरओसी है रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी नोटिफाइड टू आरओसी फॉर रिसीविंग ऑल नोटिस एंड डॉक्यूमेंट। कि रजिस्टर आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा बढ़िया से एकदम, जहाँ पे आप बैठे अपने मित्रगणों के साथ, जो आपके पार्टनर्स है। एलईपी कंपाइल्स विद रिक्वायरमेंट और पढ़ लेना यार खुद से इतना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवाइज कर रहा हूँ मैं भी। चेंज ऑफ नेम अनडिजायरेबल, हाँ चेंज ऑफ नेम भाई, चेंज ऑफ नेम तगड़ा चीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ देखो, अगर आप रजिस्टर हो जाते हो ना, आपका एक एलएलपी का एग्रीमेंट तो होना ही होना चाहिए। जैसे आप रजिस्टर हो जाते हो, आप बन जाते हो आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है आपकी। अगर आपको कॉमन सी रखनी है तो रखो, और ऐसा कोई वो नहीं है, मैंडेट नहीं है, ऑप्शनल है। रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। You can act as a body corporate, and you can hold assets, tangible, intangible, on your own name, movable, immovable, doesn't matter. And you get a power to be sued and to be sued upon on your own name after you get registered as an LLP. Okay, names. Using a name identical to the existing company and identical or closely resemble to the name of existing LLP or the company, the ROC shall give you the notice to like change the name. If name is identical or mistaken, if name is undesirable, like Tila Bazaar LLP, Lambu Lothra Partners, like ये तो नाम हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, लाइक ठीक है। विद इन 3 मंथ आफ्टर द डायरेक्शन कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने लाइक ऐसा किया तो एलएलपी को 10,000 से लेकर 5 लाख तक की वो हो सकती है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है।
इस एलएलपी में अप्लाई फॉर रिजर्वेशन। बहुत टाइम ले रहा है यार ये। तो जरा वीडियो देख लेता। वीडियो देखने का मज़ा नहीं आता है। हाँ, वीडियो देखने का मज़ा नहीं आता। इसमें पढ़ा रहा है और अब ऐसे 2x पे वो 1x पे देखेंगे नहीं। पेपर है यार। तो अब यहाँ पे मतलब पार्टनर्स के बीच के संबंध आ चुके हैं। कि एक ऐसा रिलेशनशिप रहना चाहिए। एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर हु सब्सक्राइब टू बी द नेम। ठीक है। On incorporation of an LLP, the person who subscribes their name into the incorporation document shall be partner and the person may become partner in LLP in accordance with the LLP agreement। ठीक है। आपने बनाई LLP, उस LLP में आपने एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट में जिसका भी आपने नाम लिखा वो LLP का पार्टनर बन गया। और ये सब आगे आगे जैसे बनते जा रहा है। वहाँ तो मैं देखता हूँ ऐसा मुझको नहीं लगता है। ऐसा लगता है मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी को जो लगता है ना वो सब सही है। तो मैं बात कर रहा। पहला पहला प्यार है, पहले पहले बार है। पार्टनर्स एंड द रिलेशन म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज टू बी शैल कवर अंडर एलपी एग्रीमेंट। ठीक है। तो कोई भी चेंज होता है अगर आपके पार्टनरशिप से आपके पार्टनर में अगर आपका कोई पार्टनर सीजन हो जाता है आपके पार्टनर का मतलब कि अगर आपका कोई पार्टनर मर जाता है या लाइक इफ ही वांट्स टू लाइक छोड़ने उसका एलपी, कोई भी चेंज हो रहा है आपको आरओसी को बताना है। वो साला पेनल्टी लगा देगा वरना। सब बताओ आप मेरे को। इसका लाइक रियल वर्ड से कितना वो लाइक इसका बंदे इसके बारे में तो नहीं पता बट वो तो जब आगे जाएंगे तब पता चलेगा। अभी तो यही पढ़ना पड़ रहा है। एलएलपी लाइक ऐसी है, अच्छे कदमों पे चलने वाली। फिर agreement and made before incorporation of LLP among the partners may impose such obligation on LLP provides such agreements is ratified by all partners and after the। अरे देखो क्या है। एलएलपी बनी, एलएलपी बनने से पहले अगर पार्टनर से कोई अपना एग्रीमेंट बना के रखा था। ठीक है। तो जब जैसे एलएलपी बनी तो उसको उनको एकदम ऑफिशियल बनाना पड़ेगा एलएलपी एग्रीमेंट करके। ऐसा करके बनाना पड़ेगा। पहले वाला साइज नहीं रहेगा। ठीक है। आप ऐसे ही चार दोस्त है अपने मिलके ऐसा बोलते कि हाँ हाँ तू तू 10% रखना है मैं 10% रखूंगा। ऐसा कुछ भी बोल दिया फिर आपने एलएलपी बनाई तो आप ऐसे ही नहीं चलाओगे काम। आपको फिर उसको एक बढ़िया तरीके से रखना पड़ेगा। अगर नहीं है आपके पास कोई भी अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आपकी जो रूल्स एंड ड्यूटीज है वो एज पर द शेड्यूल 1 ऑफ द रूल्स एंड ड्यूटीज जो कि लिखा हुआ है एलएलपी एग्रीमेंट में उसमें एक ड्राफ्ट टाइप का दिया हुआ है कि ये रूल्स एंड ड्यूटीज रहेगी एक पार्टनर की अगर आपके पास एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो। ठीक है। डिसीजन ऑफ अ पार्टनर आ चुका है। डिसीजन ऑफ पार्टनर एज पर नोटिस। देखो जैसे कि अगर आपका पार्टनर खत्म हो। ठीक है। तो नोटिस देना पड़ेगा आपको विद इन 30 डेज और ऑटोमेटिक डिसीजन लाइक एक अगर आपका पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो आपको पार्टनर को या एलएलपी को 30 डेज में नोटिस देना पड़ेगा। तो अदर अगर आप एक पार्टनर हो और आपको छोड़ के जाना है तो आपको विद इन 30 डेज बाकी पार्टनर्स को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को छोड़ के जाना है। ठीक है। और अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है मतलब कि डेथ हो गई है या एलएलपी डिसॉल्व हो गई है। ठीक है। ये या फिर अनसाउंड अमाउंट है या अप्लाइड और डिक्लेयर्ड अगर इंसॉल्वेंट घोषित हो गया पार्टनर तो हम मान लेंगे कि उसका ऑटोमेटिक सिस्टम हो चुका है और एलएलपी का पार्टनर अब नहीं बचा है। स्टिल नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। अगर वो जो पार्टनर दे सकता है तो वो नहीं तो फिर वो बाकी पार्टनर्स भी बता सकती है जो कि एलएलपी होगी। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बता तो एलएलपी बता रही है। ठीक है। और हाँ एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की ऑल दी पार्टनर्स आर एजेंट टू एलएलपी एंड एलएलपी एक्ट एज अ प्रिंसिपल टू एजेंट एंड नॉट एज एजेंट एंड प्रिंसिपल टू अदर पार्टनर। ठीक है। एलएलपी के लिए है इन एक दूसरे के लिए नहीं है। सिर्फ एलएलपी के लिए है ये। ठीक है। एक दूसरे के लिए नहीं है।
होल्डिंग आउट ऑफ पार्टनर पे पढ़ लेते हैं, इसका सेक्शन बता देता हूँ मैं पहले। पार्टनर होल्डिंग सेक्शन 29, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो चलो ना। Registration of changes in partners. Every partner shall inform the LLP of any change in name and address in period of 15 days. When a person becomes or ceases to be a partner, file a notice for the registrar within 30 days. रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन, अगर देखो कोई भी चेंज हुआ है, एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म एलपी एनी चेंज इन नेम एंड एड्रेस, ठीक है। देखो अगर आपका कोई भी पार्टनर है, उसके कोई भी नेम, घर का नाम या एड्रेस वगैरह में चेंज आ रहा है, तो उसको विद इन 15 डेज एलएलपी को बताना चाहिए, और फिर एलएलपी जाके पोक देगा सब आरओसी को, ठीक है। और एलएलपी वेर अ पर्सन बिगिंस और सीज टू बी पार्टनर फाइल अ नोटिस ऑफ रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज आफ्टर बिफोर ही बिकेम सीज टू बी अ पार्टनर, ठीक है। एलएलपी बताएगा आरओसी को जाके कि भाई ये छोड़ना चाह रहा है, तो उसको 30 दिन के प्रायर में ये सब देना पड़ेगा एलएलपी को, ठीक है। और जो भी नेम एड्रेस है वो भी 30 दिन के, ठीक है। कॉन्ट्रवीन्स सबसेक्शन 2, ठीक है, ये जो सबसेक्शन 2 है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को पेनल्टी पड़ेगी 10,000 रुपए की। हर बात पे भाई पैसा कितना चाहिए इन लोग। इफ एनी पार्टनर कॉन्ट्रवीन्स सबसेक्शन 2, तो सेल भी पार्टनर भी लायबल होगा 10,000 की पेनल्टी के लिए, इसको भी 10,000 की पेनल्टी लगेगी। नहीं देखो, एलएलपी कॉन्ट्रवीन करेगी, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 की वो लगेगी पेनल्टी, और अगर पार्टनर कॉन्ट्रवीन करेगा सबसे तो पार्टनर को 10,000, ठीक है। If any was to be a partner and file insult the cease to be a partner, LP may file with the registrar the notice referred to in section 3 reasonable cause। अरे कुछ नहीं, देखो जैसे कि मुझे मैंने एलएलपी को बताया कि मेरा ये ऐसा 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 है, एलएलपी ने आरओसी को बताया ही नहीं। मैं गया आरओसी के पास, आरओसी ऐसा ऐसा ऐसा, आरओसी बोल रही एलएलपी को, ऐसे बात है कि 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, नहीं बताया मान लिया जाएगा कि है ऐसा, और आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में कर लेगा। When there is no confirmation is given by LP within the 15 days, registrar shall register the notice made by a person ceasing to be a partner under this section. Okay. Section. Extent of partners liability. Partners are agent of LLP, not to each other. Not to. ऐसा एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बोल सकता है, ठीक है। All liability shall be LLP and be met of assets and property. Extradited. तो 4 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, तो क्या साले ज्ञान क्या देता है, हाँ। 12 बजे उठ के पढ़ रहा है, बहुत बोलता है ये। Extent of liability. LLP not bound to be anything done by the partner, ठीक है। अगर तू साले मेरे दूसरे पार्टनर, क्या भाई, कुछ करेगा ना, कुछ करेगा ना तू, हाँ तो भाई बीड़ी भूख आदमी मारू एलपी के नाम पे, तेरे नाम का कुत्ता पालू साले। पर बेटा ऐसा कुछ करना तो मैं तो लाइबल नहीं रहूंगा, मैं तो उठा दूंगा अपने हाथ, कॉज इट्स द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जितने का अपना शेयर है उतने की अपनी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो बिड़ू जितने का भी तू कुछ करेगा ना, अपन को उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा क्या है, ऐसा है क्या, ऐसा ही है बिड़ू। और लाइबिलिटी रैंकफुल एक्ट, ठीक है, कुछ भी करेगा ना वो यही सब है। अब देखो मैं याद तो होने नहीं वाला इतनी जल्दी ये सब, और मैं रटने भी नहीं वाला, आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से हो चुकी है। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है, whose by word spoken or written by the conduct represent himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in an LP is liable to any person who has a faith of any such representation given credit to the LLP, whether the person representing himself or represented to be partner does not know the representation has changed, has reached the person so given credit. However, when credit is received by the LLP as such result of the such representation, the LLP shall, without prejudice,
to the liability of the person so representing himself or represented to be a partner be liable to the extent of credit received by its on any financial benefit arriving thereon. When any partner death, the business is continued in the same LLP name. The continued use of that name of the deceased partner and the part of thereof shall not by itself make his legal representative or his estate liable for any act of the LLP done after his death. So, the point of section holding out partners by holding out under section 29 it says like that if you are a partner, if you are not a partner and represent as yourself as a partner, and if a third party gives any credit or loan to the LLP on behalf or on thinking like you are the partner to the LLP and you are being very eligible and a man of integrity, okay, and if LLP contravenes, like if LLP was unable to pay, you can be paying, like, so if when third party gives credit to the LLP on name of this, then you will be also liable because you are being the partner by holding out and you are representing yourself as a knowingly permit, ठीक है, and you knowingly permitting it, okay, so you will be also liable. But and also in case of debt, okay, if a partner is being seized and LLP is not informing to the public, okay, and if a person has given notice saying like deceased partner is still alive and working in the LLP and LLP continues by taking the credit, so the legal heirs of the deceased partner will not be liable for any extent of this liability, okay. Unlimited liability in case of fraud